डीएवी कॉलेज अमृतसर में एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा पूर्व छात्रों के लिए अंदाज 2024 का आयोजन करवाया गया। ये कार्यक्रम प्रिंसिपल डॉक्टर अमरदीप गुप्ता के निर्देश अनुसार एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर नरोत्तम भल्ला और सेक्रेटरी प्रोफेसर सुनील सदेवा के नेतृत्व में करवाया गया। इस कार्यक्रम में पुराने स्टूडेंट्स पहुंचे और इस अवसर पर प्रिंसिपल डॉक्टर अमरदीप गुप्ता ने कहा, It is an honor to see so many familiar faces also, and the faces whom I am meeting for the first time in this very important alumni meet. As coming together on this event, we cherish the memories, we cherish the time that we have spent, all of us have spent in this great institution when we were students. I must share with you that I am also alumnus of this great institution. I studied +1 and +2 non-medical from this college in the year 1990. And whenever this event is going to happen in this college campus, I also start thinking about the days when I was student of this college, and many teachers, dedicated teachers, hard-working teachers, all those who taught me at that time, I remember them, and I really am very thankful to all of them that they shaped my future in this way. And you must also be feeling, all of you must also be having same experience, same memories, same feelings as you have gathered here. This event also, we are able to share bonds with all of us, the bond that we are from the same institution, that this platform helps us to reconnect with each other and to see that today what our college has achieved with the dedication, hard-working attitude of the teachers and the achievements of the students and of the faculty. The college has achieved many laurels, many positions in academics, core curricular activities, and all other extension activities. And I have the honor to share those achievements with you. I'm just sharing with you the recent years' achievements of the college, not whole of the years, but recent year, because we had Andaz 2023 in the month of November itself last year. This is the snap that we have actually tried to share with you that will remind all of you the time that you spent here last year also in this event. So our college has been able to achieve as many as 13 first positions and 11 second and 10 third positions in the recent academic achievement that have been achieved by the students in the recent examinations of university. So this is the placement, because any degree that is awarded to the student, a student should get a job in hand in the final year itself. So we are trying our level best. Our placement cell of the college is trying its level best to call upon many companies, many multinational companies, and we are able to hold on-campus placement drives. And in these drives, as many as 160 students have been placed, have been given the job opportunities when they are actually the student. They were actually the students of final year. This is the different thing that we started a few years back, that providing the internship and apprenticeships. But I must also tell you that when UGC has, even Punjab government has launched to implement National Education Policy 2020 in the curriculum of the university, now the students have to have one internship at least. In some of the classes, they have to undergo the internship in the second semester. In some of the classes, but in whatever semester they are to go to the internship, go for the internship. But it is compulsory now in NEP 2020 that student has to go for internship at least in one semester. But this
achievement, this change, this update in the curriculum has been initiated by the university in the current year, but for the last few years, we are actually connecting with the companies, we are actually connecting with the different organizations where we are telling them to offer internships and apprenticeships to the students. And I'm very happy to share with you, in the recent year also, our students have got internships in the reputed organizations like IISER Kolkata and IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Ropar. So we were able to give them offer them internships and apprenticeships by collaborating with many reputed organizations. And this year also, recently, we had MOU with the IIT Ropar, where our IIC unit of the college, we executed one MOU with IIT Ropar recently, means 3 or 4 months back. And we are preparing our students to get the internships, to execute, to go for the different training programs and professional programs in collaboration with IIT Ropar. So this is a big achievement of the IIC of the college. And जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये एक बॉन्ड है जो हम शेयर करते हैं जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये बॉन्ड जो है ये अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी अलमनस होता है कॉलेज का, वो अपने प्रेजेंट स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल होता है, एक रोल मॉडल है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने प्रेजेंट स्टूडेंट्स के लिए, अल्मा मेटर के प्रेजेंट स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत कुछ कर सकता है, वो कनेक्ट हो सकता है। वो हम आपकी तरफ से जब भी कभी कोई ऑफ़र आएगी, आप अगर हमारे स्टूडेंट्स के साथ कोई इंटरेक्शन इन द सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम और कोई MOU वगैरह जो हम कर सकते हैं, तो ये दैट विल बी ग्रेट बेनिफिशियल स्टेप फॉर द स्टूडेंट्स। और हमने ऐसा किया भी है लास्ट ईयर। हमारे यहाँ पे जो CA एसोसिएशन के मिस्टर अनेजा हैं, वो आज नहीं आ पाए। मिस्टर अनेजा हैं जो कि हमारे प्राउड एलुमनस हैं हमारे कॉलेज के, उनके साथ हमने कई सारे MOUs किए हैं और BCom के कितने ही स्टूडेंट्स को उन्होंने आर्टिकलशिप, जो कि सिलेबस में नहीं है, एक्चुअली दीज थिंग्स आर नॉट इन द सिलेबस, बट वी एज अ टीचर वी थिंक दैट प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बच्चों को देनी साथ में बहुत 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 ज़रूरी है थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझने के लिए। तो हियर कम्स द रोल ऑफ द एलुमनाई ऑल्सो। तो हमें बड़ी खुशी है मुझे कि उनके साथ जब हम कनेक्ट हुए तो उन्होंने यहाँ आके लेक्चर्स भी आर्टिकलशिप के ऊपर दिए और कितने सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने आर्टिकलशिप दी, BCom के और BBA के स्टूडेंट्स को हमारे कॉलेज के। और सिर्फ फाइनल ईयर को नहीं मिली, फर्स्ट ईयर को भी स्टूडेंट्स को मिली, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को भी मिली। तो दे आर रियली, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये भी एक कनेक्शन है जो हमें ज़रूर आपस में ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए। तो ये अवार्ड्स और ऑनर्स हैं जो हमारे टीचर्स को मिले हैं। रिसर्च पेपर्स के लिए हमारे टीचर की जो साइटेशन इंडेक्स है वो हमारे एक है, तो बहुत सारे टीचर्स की साइटेशन इंडेक्स, लेकिन जो हाईएस्ट साइटेशन इंडेक्स है वो मैंने आपको बताई है, ये रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए होती है टीचर्स के। तो आपके अल्मा मेटर के टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी अचीवमेंट ले रहे हैं। तो रिसेंटली PhD भी एक टीचर ने हमारे की है। पैटेंट्स, मुझे खुशी है कि मुझे खुद को अभी कल ही पता चला है, मैंने 6-7 महीने पहले सबमिट किया था, मुझे खुद को भी एक पेटेंट जो है वो ग्रांट हुआ है। येस्टरडे ही ये मुझे ग्रांट हुआ है तो एक रिसर्च के लिए। तो ये बाकी हमारे टीचर्स हैं, डॉक्टर सनी ठुकराल को भी एक पेटेंट पब्लिकेशन है उनका, और प्रोफेसर शिवानी सन का भी पेटेंट पब्लिकेशन है। दिस इज़ अ रेयर अचीवमेंट, क्योंकि हम लोग जो हैं वो टीचिंग में, कॉलेजेस जो है ना वो टीचिंग में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। हमें स्पून फीडिंग की तरह टीचर्स को, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। वी आर नॉट ए यूनिवर्सिटी, बट एट लीस्ट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू कम्पीट विद एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। तो लाइब्रेरी हमारे एक बहुत अच्छा स्टार रीडर ऑफ द लाइब्रेरी, हमने एक अवार्ड शुरू किया था, उसमें भी बच्चों की हमने देखा है कि जो उनका जो फुटफॉल है वो लाइब्रेरी में बढ़ा है। सोसाइटीज़, क्लब्स हमारे कॉलेज की बहुत सारी हैं। मैं बहुत जल्दी इसके थ्रू हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि जब इस सब के बाद मैं आप लोगों को सुनूंगा, आपकी सजेशंस को सुनूंगा, आपके आइडियाज़ लूँगा, आपकी मेमोरीज़ जो आप शेयर करोगे वो सुन के मुझे ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी अल्मा मेटर 1 साल में उसने क्या किया है, किस राह पे है, किस मंजिल की ओर बढ़ रही है,
ताकि आप लोग भी उसमें कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं तो वो बड़ी अच्छी होंगी। ये आर्मी विंग हमारे एनसीसी के जो तीनों विंग्स हैं बहुत काबिल तारीफ़ काम करते हैं, हमारे कैडेट्स, हमारे ऑफिसर्स। और ये थल सेना कैंप जो कि बहुत रेयर एक स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरे इंडिया में चुने जाते हैं, कोई 100 या 80 स्टूडेंट्स, उनमें से हमारे स्टूडेंट्स को चुना गया है। अभिषेक शर्मा अटेंडेड इंटर डायरेक्टर स्पोर्ट्स शूटिंग चैम्पियनशिप एंड एयर विंग ऑल्सो। इन एयर विंग दिस कैडेट प्रभजोत कौर selected for Air Force attachment, और कैडेट आशीष for All India वायु सैनिक कैंप, एंड अनमोल दीप सिंह who attended रिपब्लिक डे कैंप। ये बहुत कम मौका मिलता है किसी भी कॉलेज को, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि लगातार 3 साल से आरडी कैंप में हमारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो एनसीसी नेवल का हो, चाहे वो एनसीसी आर्मी का हो। लगातार 3-4 साल से हमारे बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं आरडी कैंप के लिए। और यहाँ पर मैं ये अभी सुबह ही मुझे प्रोफेसर संजीव दत्ता जी ने शेयर किया था, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। ये जो कैडेट अनमोल दीप सिंह है, इसको डायरेक्टर जनरल जो एनसीसी होते हैं, हाईएस्ट रैंक की जो पोस्ट है हमारे इंडिया की, उनकी तरफ से कमेंडेशन कार्ड मिला है हमारे स्टूडेंट को। पूरे इंडिया में सिर्फ हमारे स्टूडेंट को मिला है। 120 की शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, उसमें हमारे स्टूडेंट को मिला है अलॉन्ग विद द कैश प्राइज ऑफ ₹2500। तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी जो है वो अचीवमेंट है। ऐसे ही नेवी विंग भी बहुत सारे अटैचमेंट कैंप्स के अलावा जो हैं वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो अचीवमेंट्स हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमने पार्टिसिपेट करते हैं। आपको याद होंगी अपने टाइम की को करिकुलर एक्टिविटीज़, ज़रूर याद होंगी आप लोगों को कि यहीं पे इसी स्टेज पे आप लोगों ने भी परफॉर्म किया होगा कभी, या आपने देखा होगा एज ए ऑडियंस। तो अपने साथ के जो क्लास फेलोज़ हैं उनको हौसला अफजाई की होगी, उनको बकअप किया होगा। तो वो भी हम रेगुलर रूटीन में हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स जोनल और इंटर जोनल में आती हैं जो आपके सामने इस साल की हैं। तो दिस इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ बाय द स्टूडेंट्स। जो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी हमारी जो पार्टिसिपेशन है वो भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में होती है। ये आईआईसी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये एक जो आईआईसी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक चैप्टर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉन्सेप्ट बनानी होती है कॉलेज में, जो कि नॉर्मली हर कॉलेज बनाता तो है लेकिन एक्टिवली उसको चलाता नहीं है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको एक्टिवली चलाएं, और बहुत एक्टिवली हम इसको चला रहे हैं। इसके थ्रू हमने कम से कम 15 MOUs किए हैं रिसेंटली, पिछले साल में, 1.5 साल में, डिफरेंट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी और लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हमने MOUs किए हैं, और उसके साथ बच्चों को बहुत बेनिफिट हो रहा है। ये हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्रेशंस हैं, जो बच्चे बाहर वाले कंट्री में बहुत हाई जो रेप्यूटेड जो ऑर्गेनाइजेशन उनमें पढ़ने के लिए भी गए हैं। तो ये एक इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे कॉलेज ने दिए हैं। रिसेंटली हमें इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज़ भी मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आईआईसी के थ्रू ही हमारी सारी जो अचीवमेंट्स हैं उनको देखते हुए। एंड एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पे कि मैं हमेशा जो अल्मा मेटर है उसको मैं खुद भी मानता हूँ, और सबको मुझे लगता है कि ये मानते भी होंगे कि जो अल्मा मेटर है वो बेसिकली हमारी मदर होती है, मदर ही है, माँ के बराबर ही है। और मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, जैसे माँ बूढ़ी हो जाती है या जब माँ को कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने बच्चों को ही बुलाती है। तो हमने आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू दैट वी हैव लॉन्च 2 प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिव्स, जिसमें कि सोलर पैनल का एक प्रोजेक्ट है और एक बच्चों के कंसल्टेंसी का और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्ट है। उसमें मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगा, बीइंग हेड ऑफ योर अल्मा मेटर, कि इसमें कॉलेज को कहीं से भी किसी भी तरह की कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़रूर अगर मिले तो बड़ा अच्छा रहेगा, ताकि हम जो है वो आगे बढ़ सकें और भी। क्योंकि मैं आप लोगों को साफ बताना चाहता हूँ कि रिसेंट ईयर्स में, जो पास्ट ईयर्स, जैसे कि कोई 5, 6, 7, 8 साल की बात हम कर लें, आपको पता है कि कितनी ज़्यादा इमिग्रेशन होती है। जो कॉलेज की स्ट्रेंथ पहले हुआ करती थी वो कॉलेज की स्ट्रेंथ आज नहीं है। फिर भी हमने इम्प्रूव की है।
हमने लास्ट ईयर भी इम्प्रूव की थी, हमने इस साल भी इम्प्रूव की है, लेकिन फिर भी उस लेवल तक आते आते बहुत टाइम लगेगा। और मेहनत तो हम सब लोग कर रहे हैं मिलके। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इनएविटेबल हैं, मतलब उनको लॉन्च करना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें यूजीसी की भी कंडीशन होती है, उसमें नैक की भी कंडीशंस होती हैं। तो उन्हीं के प्रोजेक्ट्स को ही हमने इनिशिएट किया है। तो इसमें बड़ी जल्दी अपने कॉलेज के वेबसाइट पे एक लिंक भी इस्टेब्लिश हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, davcollegeasr.org। मेरे ख्याल से आपको सबको पता होगा कॉलेज की वेबसाइट का, davcollegeasr.org। अदरवाइज़ अगर आप गूगल पे देखेंगे भी तो भी आपको पता चलेगा उस पर। तो उसमें हम ज़रूर लॉन्च करेंगे इनको। कार्यक्रम में डॉक्टर नरोत्तम भल्ला ने कहा, मुझे आपके सामने एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एलुमनी एसोसिएशन अपनी प्यारी प्यारी इंस्टीट्यूशन का होने के नाते बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और मुझे इस बात का गर्व है कि आप सब लोगों ने अपने बीच में से ही मेरे को यहाँ लाके खड़ा कर दिया एज प्रेसिडेंट, और आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर्स करने के लिए मेरी ड्यूटी लगा दी। इस ड्यूटी में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम हर साल मिलते हैं तो किस लिए मिलते हैं और क्यों मिलते हैं। क्योंकि ओल्ड एलुमनी एसोसिएशन जब बनती है तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा होता है कि हाउ वी कैन रिमेन अटैच्ड विद आवर इंस्टीट्यूशन। So first purpose of our alumni association is to keep in mind that we are to get attached with our institution। और इस इंस्टीट्यूट के साथ अटैच करने के लिए हमें एक नेटवर्किंग की भी ज़रूरत होती है, और हमें उस नेटवर्किंग को मजबूत करना होता है। और इस पर्पस के लिए ही हम हर साल यहाँ मिलते हैं। जब हम मिलते हैं तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी फेसेस ऐसे हैं जिनसे हम रेगुलरली भी काफ़ी बार मिलते हैं, इंटरेक्शन भी करते हैं। और उस इंटरेक्शन के बाद जब यहाँ मिलते हैं तो उनसे मिलने की खुशी एक अलग तरह की होती है, क्योंकि इस खुशी में और इस मिलने में और रूटीन में मिलने में एक थोड़ा फ़र्क हो जाता है। रूटीन में हम एज इंडिविजुअल मिलते हैं, यहाँ हम एक फैमिली मेम्बर मिलते हैं। सब का एक फोकस होता है कि भाई हमने यहाँ मिलना है और उस फोकस पे बारे में बात भी करनी है, और उस फोकस को जो ड्यूटी मिलती है या जो काम मिलता है उसको आगे भी ले जाना है। इसी तरह कई फेसेस ऐसे भी हैं कि जिनको मैं शायद पहले कभी देखा ना हो, अगर देखा भी होगा तो कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा। तो उन फेसेस को देख के मेरे को ये महसूस होता है कि इन फेसेस के साथ चाहे मैंने कोई बात नहीं की है या इनसे कोई मेरी मुलाकात नहीं हुई है, पर मेरा फिर भी इनके साथ कोई बॉन्ड है, मेरा कोई संबंध है। और जब मैं सोचता हूँ ये संबंध क्या है, तो ये संबंध हमारा एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू होता है, एंड दैट इज़ फ्रॉम डीएवी कॉलेज। जब ये जो प्रिंसिपल साहब ने बोला कि डीएवी कॉलेज अमृतसर का टैग इटसेल्फ ही इज़ ए बिग थिंग फॉर अस, तो उन नए बच्चों के साथ जब मैं मिलता हूँ या देखता हूँ तो मेरे को एक अजीब खुशी होती है कि मेरी एक फैमिली बढ़ रही है। और उस फैमिली में बढ़ने के लिए जो नए बच्चे हैं या जो नए एलुमनी हैं, उनको हम कुछ गाइड भी कर सकते हैं और उनसे कुछ सीख भी सकते हैं। जो नए बच्चे हैं या नए एलुमनी हैं, उनकी यात्रा तो अभी शुरू हुई है। सो मैं उनको तो सिर्फ 2 लफ्ज़ ही कह सकता हूँ कि आप लोग अपने सीनियर से और जहाँ आपके जो पुराने लोग हैं जिनसे आप पढ़े हुए हो, आप उनकी एक्सपीरियंस का और उनकी बुद्धिमत्ता का, विजडम का
फ़ायदा लें, क्योंकि वो बहुत पुराने लोग ज़्यादा देर नहीं टिकने वाले होते, लेकिन उनकी एक्सपीरियंस और नॉलेज और उनके तौर तरीक़ों का आप कुछ ना कुछ अच्छाई देख के अपने में ग्रहण कर सकते हैं। बाकी रह के इंस्टीट्यूट में जब हम आते हैं तो इंस्टीट्यूट का आने का हमें क्या लगता है कि हम सिर्फ यहाँ पे बातें करने आते हैं या कुछ काम भी करने आते हैं। अभी हम प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में बैठे हुए थे तो हमारे पुराने स्टूडेंट राजेंद्र जी यहाँ आए, जिन्होंने कि अपने बारे में बताया और देखा, हमें खुशी भी हुई। इन्होंने पुरानी एक यहाँ की मैगज़ीन होती थी सीमा, हाथ में पकड़ी हुई थी, उनमें इनके स्नैप्स भी थे, फोटोग्राफ्स थी। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट ग्रेजुएट ऑफ दैट टाइम एंड वॉज बीइंग अवॉर्डेड सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नर एज वेल एज द चीफ मिनिस्टर्स। पुराने करण सिंह जी की फ़ोटो थी। ये सारी चीज़ें क्यों हुई? तो ये सारी चीज़ें इसलिए हुई कि उनकी भी इस इंस्टीट्यूट से अटैचमेंट थी। और वो अटैचमेंट का कारण क्या था? वो कारण ये था कि उस समय के टीचर्स ने, उस समय के प्रिंसिपल साहब ने, उस समय की एनवायरनमेंट में इनमें वो कैपेबिलिटी देखी और उसको पॉलिश किया, पॉलिश करके समाज में आगे बढ़ने का मौका दिया, जिससे कि ये यूनिवर्सिटी में हमेशा फर्स्ट आते रहे, बेस्ट ग्रेजुएट ऑफ द ईयर बने, उसके बाद लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। वो इस चीज़ को भूलते नहीं हैं जो इस कॉलेज ने दिया है। और उसकी ही नज़र में ये आया कि भी मैं भी इस फंक्शन में जाके इस नेटवर्क में अपने आप को अटैच करूं। इसी तरह ये कॉलेज के जब हम फंक्शन करते हैं तो उसमें हमारा पर्पस ये भी होता है कि हम इस कॉलेज के साथ किस तरह से जुड़ें। आज मैं जो हूँ और जो मैंने अपने लाइफ में किया वो भी इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज के इंस्टीट्यूशन की बदौलत है। क्योंकि चाहे मैं मेडिकल कॉलेज में मेरा ज़्यादा टाइम बीता है, आई वॉज द हेड इन द मेडिकल कॉलेज, बट मेरी नींव तो इस कॉलेज ने बांधी थी। इस कॉलेज ने मेरे को सिखाया कि भी डिसिप्लिन में कैसे रहना है, मेहनत करना है और किन पॉइंट पे स्ट्रेस करना है, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है। ये जो क्वालिटीज़ इस कॉलेज ने मेरे को उस 2-3 साल में दी, उस क्वालिटीज़ की वजह से ही मैं एक प्रोफेशनल कॉलेज में जा सका। वह प्रोफेशनल कॉलेज में आगे बढ़ता बढ़ता उस प्रोफेशनल कॉलेज के हेड तक पहुंच गया। तो ये कहाँ से आया? जो कि मैं अपने आप में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो इस कॉलेज की देन थी। तो इसलिए हमारी अटैचमेंट कॉलेज के साथ हर तरफ बढ़ जाती है। जो हम करते हैं और जो हमारे लिए कोई करता है, उसका कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे पीछे होता है कि भी इसने मेरे साथ इतना किया, तो मैं एज ए इंडिविजुअल व्हाट कैन आई डू फॉर माय इंस्टीट्यूशन।